Of ease of living and ease of doing business given by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has indeed brought a paradigm shift in India's physical and social infrastructure development. Telangana has also benefited immensely from various central government's initiatives. साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। Today, Honorable Prime Minister is inaugurating, dedicating to the nation and laying foundation stone for 6 projects costing about 9,400 crore rupees. Foundation stone for the 4-lane Guddebellur-Mehboob-Nagar stretch of the Hyderabad-Panaji Economic Corridor is being laid today. This project will provide seamless link between Raichur and Mehboob-Nagar, reducing travel time by 90 minutes and reducing Hyderabad-Goa travel time from 12 hours to 8 hours. POL terminal at Malkapur, Hyderabad is being dedicated to the nation. This terminal will strengthen Telangana's energy security and streamline fuel distribution by ensuring reliable supply, reducing transport costs and minimizing shortages during peak demand. Today, 2 key rail development projects are being dedicated to the nation. These include multiple sections of Kazipet-Vijayawada multi-tracking project with combined length of 118 kilometers. These projects will reduce congestion on the busy Grand Trunk route and improving speed and punctuality. The 21-kilometer Kazipet rail under rail bypass will eliminate bottlenecks at the junction, enabling smoother, simultaneous train movements and enhancing both freight and passenger operations. The foundation stone for the Zahirabad industrial area is also being laid today. This will launch a global manufacturing revolution by attracting investments, creating thousands of jobs and building world-class industrial infrastructure. The prestigious PM Mitra Park is also being inaugurated today. This park will have world-class infrastructure which will integrate the textile value chain guided by the 5F vision: farm to fiber to factory to fashion to foreign, and generate large-scale employment for women and rural youth while boosting exports. In Amrit Kaal, under PM Modi's vision, Telangana is poised to become a leading economic hub, driving India's growth story and contributing to the nation's goal of building a Vikasit Bharat. What a historic moment, ladies and gentlemen. A huge round of applause. आज भारत को सोने की चिड़िया फिर से बुलाया जाना लगा है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने इसे विश्व गुरु बनाने का सपना दिया है, बल्कि इस देश को वो स्वर्ण पंख दिए हैं जिसे भारत एक उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। भारत के विश्वकर्मा कहा जाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की उम्मीद है, भारत की आशा है, भारत का हौसला है। अभी हम अनुरोध करते हैं इस पावन अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पावन अवसर पर संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, special address. तेलंगाना के राज्यपाल
श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, संसद के मेरे साथी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहां हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है। इन सुविधाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगेंगे और तेलंगाना, हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहां बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहां लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। साथियों, अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है। बीते 11 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे का नेटवर्क डबल हुआ है। तेलंगाना और कर्नाटका को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से बहुत सुविधा होगी। इससे ट्रेवल टाइम कम होगा और किराए भाड़े में भी बचत होगी। साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना? संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहां काम चल रहा है। तेलंगाना में 5 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनें भी चल रही हैं। साथियों, अभी कुछ देर पहले काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के कुछ सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर बाईपास लाइन का भी राष्ट्र को समर्पित की गई है। इन सुविधाओं से सफर भी आसान होगा और ट्रांसपोर्टेशन की गति भी तेज होगी। साथियों, 21वीं सदी की इस दुनिया में बिना ऊर्जा सब काम ठप पड़ जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं,
हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहां का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहां के उद्योग, यहां के एमएसएमई, यहां के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हां, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें और 2047 विकसित भारत का सपना हम अपनी आंखों के सामने सिद्ध होता देखें। यही मेरी सबको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, on that note, we thank our Honorable Prime Minister for his inspiring address and for gracing Hyderabad with the presence today. హైదరాబాద్లో మోదీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. హెచ్ఎస్సీసీకి ప్రధాని చేరుకున్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే పలు ప్రాజెక్టులకు ఆయన వర్చువల్గా శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. అనంతరం మోదీ ప్రసంగాన్ని మనం విన్నాం.
తెలంగాణకే కాదు దేశానికి కూడా హైదరాబాద్ చాలా కీలకమంటూ ఆయన అభివర్ణించారు. దేశ అభివృద్ధిలో సైబరాబాద్దే ప్రముఖ పాత్ర అని కూడా మోదీ చెప్పారు. సైబరాబాద్ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పుడు లాంచ్ చేసినటువంటి కొత్త ప్రాజెక్టులతో ఉద్యోగ కల్పన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ దిశగా ఆలోచన చేస్తోంది అని చెప్పారు. 10 ఏళ్లలోనే అనేక జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేశామని కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా వరంగల్ PM మిత్ర పార్కుతో దేశంలో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి ఊతం లభిస్తుందని చెప్పి ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. 1.75 లక్షల కోట్లతో దేశంలో కనెక్టివిటీ పెంచుతున్నామని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। वारंगल का PM मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। PM मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की PLI स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब हमारे रेवंता जी विकसित भारत घोषण पत्र निकाला, उसी दिन हम लोग ये तय किए विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए हम तेलंगाना राइजिंग 2047 हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हम लोग ये कहा, आगे तेलंगाना इस देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहीराबाद इंडस्ट्रियल पार्क
रेलवे लाइन, अभी जितने भी आज विकास होते जा रहा है, ये विकास कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनीति चुनाव हो गए 5 राज्यों में, चुनाव खत्म होते ही देश को आगे तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं, उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है।